So what we discussed in last lecture? Yesterday, what we discussed? Vidhi, your voice is not clear. Application, graph. Yes. Application, graphs. Graphs? Is it true? We study about graph. Group. Okay, group. Good. Okay. So quickly, I revise it. Okay. First, this is our unit number 3, linear algebra. Okay. It is our unit number 3. Then this is the outline of our this unit, application of vector space. First we discuss about the applications of vector space. Then we already discuss about the group, field and vector space. Okay, in last lecture we reached at vector space and we have done one example for that. Okay, then this is the our unit, introduction of vector space and its examples, linear dependence and independence and its example, basis and examples. Okay, then these are the applications of linear algebra. I already discussed in yesterday's lecture. Okay, also I discussed about the group has 4 property: closure, associativity, identity and inverse. Okay, and if one more added then it will be abelian, and that is the commutative property. Okay, अगर ये 4 property satisfy करता है तो it is known as group, and if it is commutative also then it is known as the abelian group. Okay, we already discussed in yesterday's lecture. Then we go for the field. Okay, so field has plus and cross, 2 binary operations are there, and both have, first one is the abelian group. Abelian group means it will be closure, associative, existence of identity, inverse and commutativity. Okay, then it is also abelian with binary operation cross. Okay, then cross is distributed over plus, that means there is another extra addition property is distributive over cross to plus. Okay, and what are the examples of field? N and Z are not fields. Okay, but Q, R, C are fields under plus and क्रॉस. ओके, अब यहाँ पे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है. अगर आप बाइनरी ऑपरेशन खुद का डिफाइन करें तो हो भी सकता है. ओके, लेकिन इन जनरल इट इज नॉट फील्ड अंडर प्लस एंड क्रॉस, एंड Q, R and C are the fields under addition and multiplication. Okay, then we discuss about the vector space, our main definition. It is vector space. अब vector space कब बोलेंगे तो V is a commutative group under plus. Commutative group means there are 5 properties. Number 1 कौन सा था बताओ. चलो अब मैंने बोला था कि आप पढ़ लेना एक बार. फर्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी? First property. Which is our first property? Associative. No, it is second. Associativity is the second. First we have to check about yes, closure, then associativity, then third, what is our third? Identity. Yes, identity. Good. Then fourth, Inverse. Then 5 कम्यूटेटिव है ना, तो 5 आएगा ना. फिफ्थ कंडीशन इज अवर कम्यूटेटिव. ओके, कम्यूटेटिव होना चाहिए. दैट मीन्स इन फर्स्ट पॉइंट देर आर 5 प्रॉपर्टीज. ओके, देन इन सेकंड पॉइंट देर आर 2 प्रॉपर्टी. दैट मीन्स नंबर 6 मीन्स क्लोजर इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन. ओके, सेवंथ प्रॉपर्टी इज alpha u plus v is equal to alpha u plus alpha v. Eighth property is our alpha plus beta u is equal to alpha u plus beta u. Then ninth property is alpha beta u is equal to alpha beta bracket में alpha beta u is equal to beta alpha u. That is our ninth property.
and last one is 10th property. Okay, if any non-empty set V over field F satisfy these 10 properties, then it will be a vector space. Okay, तो वेक्टर स्पेस के लिए नोटेशन कौन सा है? तो VF मीन्स वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F. ओके, तो ब्रैकेट में जो होगा वो फील्ड है एंड बाहर जो होगा वो वेक्टर स्पेस है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द लीनियर स्पेस. ओके, then if F is equal to R, that means if you consider field as a set of real number, then V of R, a vector space over the set of all real numbers, which is called the real vector space. And if you change or if you consider field as complex number, set of complex number C, then it V of C is known as the complex vector space. Okay, we already discussed these things in yesterday's lecture, but I am repeating it due to some student. Okay, now we already done this example. If V is equal to F is equal to R, then the case is of R of R is a vector space. We have to prove that. Okay, कि हमको ये प्रूव करना था कि R of R, okay, is a vector space. Okay, तो हमने किया था, वो कैसे किया था सबको पता है. Am I right? Okay, तो ये था, हमने पहले क्लोजर से स्टार्ट किया था, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, then we go for the closure property. Okay, in scalar multiplication, then we go for the alpha u plus v property, then alpha plus beta u, ninth property alpha beta u, and last we have discussed 1 into u is equal to u. And after verifying these all properties, we can say that R of R is a vector space. Any doubt up to here, student? No, Dear sir. student, no. Okay, then we go for the our next example. Okay, चलो पहले बताओ मुझे C of R, उसमें फील्ड क्या हुआ? R. R. Good. Field is our R. And vector space मुझे किसको दिखाना है? C of R. C को, है ना. पहले कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे वेक्टर स्पेस दिखाना है, लेकिन उसको रिलेट किसके साथ करना है? मुझे फील्ड R के साथ. ओके, तो चलो इसमें मुझे बताओ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. नाउ यू हैव टू थिंक, क्योंकि ये आप नहीं जान पाएंगे तब तक प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम चीज आज एक नए मेथड से करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा आपको कितने एक्स वाई लेना पड़ेगा, हाउ मैनी एक्स वाई यू हैव टू टेकन. पहले इस सेंटेंस में वो लिख देते हैं ताकि बार बार हमको वो कंसीडर नहीं करना पड़े. तो फर्स्ट में देखो, यहाँ पे क्लोजर में मुझे दो वेक्टर फील्ड में से लेना है, सॉरी वी में से लेना है ना. दो वेक्टर कहाँ से लूंगा मैं? V में से ना. ओके, तो V में से मुझे दो वेक्टर लेना है. गुड. देन कितने स्केलर लेना है? चलो बताओ. बताओ तो सही यार. अब ऑब्जर्व करना है कि कितने स्केलर, अल्फा बीटा जितने हैं वो स्केलर है, एंड जो वेक्टर है वो एक्स वाई है. ओके, तो वेक्टर हम V में से लेंगे और स्केलर जो है वो फील्ड में से लेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएटिविटी में 3 वेक्टर चाहिए, तो मैं पहले 3 वेक्टर कंसिडर करूंगा. ओके, उसके बाद अगर आप देखिए तो अल्फा मेरा 6 प्रॉपर्टी में चाहिए, तो एक अल्फा यहाँ पे हुआ. ओके, दूसरा बीटा भी चाहिए, तो 2. दैट मीन्स पहले हम मेंशन करेंगे कि मुझे 3 वेक्टर चाहिए एंड 2 कांस्टेंट चाहिए. ओके, तो वहां से हमारा एग्जांपल स्टार्ट होगा. तो चलो हम करते हैं. तो लेट, मुझे क्या दिखाना है वो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CR. ओके, आई वांट टू प्रूव दैट, दैट मीन्स प्रूव दैट C of R is a vector space. Is it visible, student? Yes, sir, visible. Okay, then solution. So what is my solution? I have to mention first about the 3 vector. So consider
Z1, क्योंकि मुझे किस में से लेना है वो C में से, है ना, C मेरा कॉम्प्लेक्स है तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, तो Z1 Z2 Z3। ओके, मैं 3 वेक्टर पहले फिक्स करूंगा। तो Z1 मुझे क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप A1 प्लस आई B1 भी ले सकते हो, X1 प्लस आई Y1 भी ले सकते हो। ओके, इट इज डिपेंड ऑन यू। Z2 में ले रहा हूं A2 प्लस आई B2। ओके, देन Z3 में ले रहा हूं A3 प्लस आई B3। ओके ओके, अब मेरे 3 वेक्टर हो गए। हियर यहाँ पे लिख देंगे Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू कैपिटल V इक्वल टू C। डन, क्लियर? ओके, अब 3 वेक्टर मैंने ले लिए। देन आई want to explain about the scalar. Also consider alpha beta belongs to R. Done? Clear? This is my second step. Sorry, this is my second consideration. तो ये मैंने मेरा फर्स्ट जो प्री रिक्वेस्ट था वो मैंने डेवलप कर दिया। एनी कंफ्यूजन इन दिस स्टूडेंट? No, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो जो A1 B1 A2 B2 A3 B3 वो भी कहाँ से आएंगे, वो भी रियल नंबर होते हैं ना। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो A1 A2 A1 B1 है, A2 B2 है, A3 B3 है, वो भी कहाँ से आते हैं, कहाँ से हम लेते हैं, आर में से लेते हैं ना। तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, दैट मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में वो रियल नंबर लेते हैं वो सभी को। ओके, आई आने से वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डन। ओके, अब ये मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब नाउ आई डिस्कस अबाउट द कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 मेरा कौन सा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए यस आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखते जाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि मुझे 2 एलिमेंट लेना है V में से, दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग Z1 Z2 बिलोंग्स टू V, देन इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 एडिशन के साथ। ओके, Z1 प्लस Z2 भी किस में आना चाहिए, V में आना चाहिए। दैट इज द माय कंडीशन। ओके, तो चलो लेट्स चेक इट कि वो आता है कि नहीं। ओके, वो अंदर आना मीन्स क्या है कि वो इस फॉर्म को एज इट इज रखना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मीन्स वो ब्रेक कर रहा होगा तो क्या हो सकता है, A1 प्लस आई B1 प्लस 1 हो जाता होगा। ओके, तो पर भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, है ना, क्योंकि A1 प्लस 1 को हम आगे ले सकते हैं प्लस आई B1, लेकिन वो उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म दे देता है, देन यू हैव टू चेक इट। ओके, तो पहले हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया है, तो सीधा हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अब मेरा Z1 क्या है, A1 प्लस आई B1, सॉरी थोड़ा अच्छी तरीके से लिखूंगा। ओके, A1 1 मिनट, हाँ, ओके, A1 प्लस आई B1 प्लस A2 प्लस आई B2, ओके, इज इक्वल टू, अब आप देखो मैं A1 प्लस A2 को साथ में ले सकता हूँ, प्लस आई करके B1 प्लस B2 को साथ में ले सकता हूँ। तो यू हैव टू चेक इट, ये अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, यस और नो, Yes. इज इट कॉम्प्लेक्स नंबर, Yes, sir. Yes. okay, therefore you can say that Z1 plus Z2 belongs to capital V and V is our C। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन, एनीबडी? No, sir. ओके, देन वी गो फॉर द एसोसिएटिविटी। ओके, तो एसोसिएटिविटी में क्या मुझे प्रूव करना पड़ेगा, कौन बताएगा, व्हाट आई हैव टू चेक, चलो बताओ जल्दी। A plus B plus C. हाँ, तो यहाँ पे मेरा Z है, तो मैं मुझे क्या दिखाना पड़ेगा,
Z1 plus Z1 plus Z2 plus Z3 Z3 is equal to Z1 Z1 plus plus Z2 plus plus Z3. Z3. Am I right? ओके मुझे इससे दिखाना है, तो ये तो बहुत इजी है कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना, वो तो आराम से हो जाता है। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि आप कर पाए एग्जाम में भी। तो यहाँ पे देखो, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, लेकिन मेरा ब्रैकेट है पीछे। ओके तो यहाँ पे मैं पहले रिप्लेस करूँगा, तो Z1 मेरा क्या है, A1 प्लस IB1 प्लस, अब ये इसको सीधा लिखूँ तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एडिशन आगे डिफाइन करके दिया है, तो मैं उसी का यूज कर लूँगा, तो थोड़ा मेरे स्टेप कम हो जाएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब मेरा Z2 एंड Z3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A2 प्लस A3 प्लस I B2 प्लस B3। एम आई राइट, कर सकते हैं कि नहीं, yes or no student? Yes. Okay, now I open it, that means A1 plus IB1 plus A2 plus A3 plus I B2 plus B3, done, is equal to, now you can see here, A1 plus A2 plus A3 plus I B1 plus B2 plus B3, कर सकते हैं कि नहीं है। ओके अब उसको थोड़ा आगे पीछे करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, A1 मुझे प्रूव क्या करना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मुझे प्रूव करना है कि Z1 Z2 साथ में होना चाहिए एंड Z3 को सेपरेट करना है। ओके तो आप नीचे नीचे से भी जा सकते हो, ओके और ऊपर से भी आ सकते हो, सिर्फ दिमाग में रखना है। तो मुझे A1 एंड A2 को साथ में लेना है, ओके प्लस I करके मुझे B1 एंड B2 को साथ में ले लेना है, और जो A3 है उसको सेपरेट करना है, तो IB3। ओके अब यहाँ पे आप देखो, तो ये थोड़ा सीधा लिंक हो गया, यस और नो। तो यहाँ पे A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2, ये दोनों साथ में कर दिया मैंने, ब्रैकेट रख दिया, प्लस इसको भी ब्रैकेट में A3 प्लस IB3। ओके एनी कंफ्यूजन एसोसिएटिविटी में, एनीबडी? No, sir. नो, पक्का? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? No, sir. नो, No, sir. No, sir. D2D स्टूडेंट? No, sir. No, sir. ओके थर्ड आइडेंटिटी। ओके तो आइडेंटिटी में मुझे क्या प्रूव करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके तो पहले देखते हैं हम आइडेंटिटी में मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले मैं साइड में लिख रहा हूँ। ओके तो आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे कोई ऐसा Z1 में अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके साथ कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे कोई दूसरा कोई कंसिडर करूँ और कोई दूसरा प्लस Z1 करूँ, तो मुझे Z1 वापस मिलना चाहिए। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे वही का वही वापस मिलेगा। व्हाट आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर, so you can get your Z1 0. 0. Yes, 0 is also complex number because you can write as 0 plus I0. Okay, done. Okay, so 0 plus Z1 प्लस 0, 0 प्लस Z1 इज इक्वल टू Z1। ओके तो मुझे ये 0 लेना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, लेट, सॉरी आई चेंज माय इंक। ओके सो हियर I can substitute here, let 0 bar is equal to 0 plus I0. Okay, that means this is my identity. Done. Okay, so है ना, ओके सीधा भी आप लिख सकते हो 0 plus 0 I will be, will be an identity for addition. Done. ओके दैट मीन्स करके हमारा जो है वो रिपीट कर देंगे, Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z1
is equal to Z1. Am I right? Okay, then we go for the fourth one. Any confusion in identity, student? No, sir. No, sir. Now inverse. Okay, what you have identity, inverse property. So in inverse property we have to prove that Z1 plus something equal to something plus Z1 is equal to 0, जो हमारा आइडेंटिटी मिला है वो. Okay, so what we can do here? चलो क्या लेंगे? Minus Z1. यस, माइनस Z1. ओके, तो सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं हम. तो माइनस Z1 के लिए हम क्या लेंगे? तो यहाँ पे लेट Z1 इज इक्वल टू, ओके वो तो लिया ही है ना हमने सीधा, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि Z इनवर्स इज इक्वल टू माइनस Z इज इक्वल टू माइनस A माइनस IB लिख सकते हैं, है ना. देयरफॉर Z प्लस Z इनवर्स इज इक्वल टू Z इनवर्स प्लस Z इज इक्वल टू 0. क्लियर? डन? एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? No, sir. Okay, then fifth property. What is our fifth property? Cumulative. Commutative. Yes, good. It is commutative. So commutative. तो commutative में मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? Anybody? तो commutative में क्या दिखाना पड़ेगा मुझे? बताओ जल्दी. A plus B is equal to B plus A. Yes, so in our case it is Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. Am I right? Okay, so we start with Z1 plus Z2 again. So here Z1 plus Z2 is equal to, तो Z1 plus Z2 क्या होगा? तो A1 plus IB1 plus A2 plus IB2 is equal to, अब क्या करेंगे? अब ये तो एडिशन है और सारे रियल नंबर हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं सीधा? एम आई राइट? अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं A2 प्लस IB2 प्लस A1 प्लस IB1. तो दिस इज योर Z2 एंड दिस इज योर Z1. डन? देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव. Done? Okay, so fifth is ready. Now we go for sixth. What is my sixth condition? Anybody? Sixth condition is our closure in scalar multiplication. Okay, मैं अगर मेरे पास अल्फा है और u एक एलिमेंट है तो वो भी उसमें आना चाहिए. तो look at it. Okay, तो उसके लिए भी देखते हैं. तो here we have or we consider, okay, अल्फा बिलोंग्स टू R हमने ले ही लिया है एंड Z1 बिलोंग्स टू C. ओके, देयरफॉर अल्फा इंटू Z1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू A1 प्लस IB1 इक्वल टू अल्फा A1 प्लस I अल्फा B1. ओके, अब इज इट कॉम्प्लेक्स नंबर? यस और नो? Yes. Sir. Okay, therefore alpha into Z1 belongs to C equal to over V. That means sixth property is completed. Any confusion in 6? Student? No. No. Okay, then we go for the 7. What about other student? Please give me your confirmation. All student give me confirmation as soon as possible, है ना? Student, are you understand?
Okay, good, Yes, good. sir. Yes, sir. Okay. Then C1. C1 property is our, you can see here, what is our C1 property? Alpha u plus v is equal to alpha u plus alpha v. Okay. तो आई वॉन्ट टू चेक दिस, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा, स्टार्ट करूंगा अल्फा z1 प्लस z2 से. ओके, तो व्हाट इज माय अल्फा z1 मीन्स a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2. Then if you substitute in that, that means alpha a1 plus I, alpha b1 plus alpha a2 plus I, alpha b2. So if you can see, this is your alpha z1 and this is your alpha z2. Am I right? Okay. Or you can put one more step here. Okay. Here you can put alpha a1 plus ib1 plus alpha a2 plus ib2. Done? Am I right? Any confusion in C1? Student, C1 property? Any confusion? No? No, sir. Sir. Okay, then property number 8. Okay, so what is my property number 8? You can see here alpha plus beta u is equal to alpha u plus beta v मुझे दिखाना है. Then what can I start with alpha plus beta z1. Okay, you can take z also. Okay, no problem. So मुझे दिखाना है alpha z1 plus beta z1. Okay, so I start with alpha plus beta as it is. z1 is my a1 plus ib1. Okay, now first I apply here, so alpha a1 plus alpha ib1 plus beta a1 plus beta ib1. Okay, now I put alpha common, so a1 plus ib1 plus beta a1 plus ib1, and it is nothing but our alpha z1 plus beta z1. Am I right? Property number 8. Any confusion? Student? No? Yes or no? जल्दी क्विकली, हाँ, क्योंकि हमारा टाइम पास ऑन हो रहा है. ओके, 9. प्रॉपर्टी नंबर 9. ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है मेरा? I want to prove that alpha beta u is equal to alpha beta u is equal to beta alpha u. Okay, तो we break this into two parts. Means हम ये दोनों पहले प्रूव करेंगे और उसके बाद ये दोनों प्रूव करेंगे. चल सकता है ना? Yes or no? Yes, sir. ओके, तो पहले हम अल्फा बीटा यू से स्टार्ट करेंगे. तो अल्फा बीटा यू. ओके, लेकिन अल्फा बीटा यू नहीं, हमारा यहाँ पे जेड है. ओके, वी आर कंसिडरिंग जेड, सो आई पुट एट जेड और z1. ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जेड ले रहा हूँ, z1. ओके, सो अल्फा बीटा z1 मेरा क्या है? a1 प्लस ib1. देन आई अप्लाई दैट, तो अल्फा बीटा a1 प्लस अल्फा बीटा ib1, it is alpha beta a1 plus I alpha beta b1. Now I want to prove first beta outside. Okay, so beta outside मुझे लेना है, तो मुझे अल्फा अंदर लेना है, तो अल्फा z. तो उसके लिए मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करूंगा, तो दोनों में से बीटा कॉमन ले लिया. अल्फा a1 प्लस I alpha b1. Okay, अब now I put at alpha a1 plus b1. डन. तो दिस इज माई बीटा अल्फा यू. एक पार्ट हो गया. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना था? ये मैंने थर्ड कर दिया, फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, अब सेकंड में मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, अल्फा बीटा यू से. तो अल्फा आउटसाइड, सो अल्फा बीटा यू, दैट मीन्स z1 इज इक्वल टू अल्फा. अब बीटा के साथ मुझे z1 को लेना है, तो a1 प्लस ib1, देन अल्फा
अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो बीटा A1 प्लस आई बीटा B1। नाउ फिर से पहले मैं अप्लाई कर दूंगा तो अल्फा बीटा A1 प्लस आई अल्फा बीटा B1। नाउ व्हाट आई वांट टू प्रूव, I want to prove that beta is outside, alpha inner side. Okay, Z1 is there. Clear? So here you can put beta outside and alpha A1 plus alpha B1 और I बीच में आ जाएगा and it is nothing but beta alpha A1 plus I B1. Am I right? Okay? Any confusion? In property number 9, student? No, sir. What about other student, please? No, sir. No, sir. Okay. Then last property. Last property is our 1 into u is equal to u. Okay. So 1 into u is equal to u. ये मुझे प्रूव करना है. Okay. This is my property. So I start with 1 into z1 equal to 1 into a1 plus ib1 and it is 1 into a1 plus I 1 into b1 and it is nothing but a1 plus ib1 and that is my z1. Okay, this is my property number 10. Any confusion? No, sir. Okay, so No, यहाँ पे हम all properties are satisfied. So by definition of vector space, okay, क्या हो जाएगा? V of F, okay, V of F is equal to C of R is a vector space. Done? Okay, clear? Any confusion? Student, any problem? No, sir. No, sir. Okay, so this is our example. C of R is a vector space. Okay, इसमें आपको ध्यान रखना यही है कि प्रॉपर्टी आपको याद होगा तो यू कैन डू वेरी वेल. ओके, थोड़ा इजीली आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. सो दैट P4, the set of all polynomials of degree less than or equal to 4 with addition and scalar multiplication forms a vector space over R. Okay, तो यहाँ पे देखो आपको किसको वेक्टर स्पेस दिखाना है? P4. और कौन सा है? स्टूडेंट 1 मिनट. हाँ, ओके, अब मुझे किसको दिखाना है? तो मुझे वेक्टर स्पेस P4 को दिखाना है. और मेरा फील्ड कौन सा हुआ? चलो बताओ, फील्ड कौन सा है? व्हाट इज माय फील्ड हियर? चलो जल्दी, डू फास्ट. R. Yes, it is correct. It is R. Okay, this is my field F. Okay, ये मेरा F है और ये मेरा V है. तो मुझे इसको that means P4 R को वेक्टर स्पेस दिखाना है. Am I right? Okay, लेकिन P4 का डेफिनेशन आपको दिया है क्योंकि आप तो जानते ही नहीं हो P4 क्या है. The set of all polynomials of degree less than or equal to 4. Okay, अब यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो जल्दी पता चलेगा आपको. 1 मिनट. सो यहाँ पे देखो, मेरे पास P2 होता तो P2 में कैसे लिखता? P2 मीन्स 4 पावर 2 पावर तक जाना है. दैट मीन्स A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर. ओके, दिस इज माई P2. P3 होता तो क्या हो जाता?
a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, मीन्स जितना यहाँ पे नंबर दिया है उतने पावर तक आपको जाना है. ओके, वट एवर यू हैव नंबर देन यू हैव टू गो विथ दैट नंबर अप टू दैट डिग्री. ओके, कंसिडर एज दैट डिग्री. क्लियर? ओके, तो आपको वहां तक आपको जाना है. तो यहाँ पे P4 है, तो P4 के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, कौन बताएगा? Here I want to prove that P4 R is a vector space or not. ओके, चेक करेंगे. ओके, तो मुझे उसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है. तो जैसे हमने Z1 Z2 Z3 बोला था, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? P1x बोल दूं तो चलेगा, P2x, P3x. ओके, ये मेरे 3 एलिमेंट है. दैट मीन्स लेट P1x, P2x एंड P3x. ओके, डन. ओके, वैसे तो ये P1, P2, P3 अलग चीज है ना. मैंने अभी बताया आपको कि P1 यहाँ पे कुछ होगा तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, P2 होगा तो पोलिनोमियल विद डिग्री 2, P3 होगा तो पोलिनोमियल विद डिग्री 3. लेकिन मैं ये तीनों पॉइंट P4 का ले रहा हूं, इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे? a0 प्लस a1x a4 x raised to 4. Any confusion? Dear student, any problem? सर तो No, sir. P1 P2 P3 ની જગ્યામાં PA PB PC લઈ લઈએ ને. यस यस यस, इट इज गुड. ओके, गुड सजेशन. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? गुड सजेशन दारिया. P1 PA PB PC. गुड. तो यहाँ पे PA PB PC. सो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कि ये कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, B1x प्लस B2x स्क्वायर प्लस B3x क्यूब प्लस B4x raised to 4. Similarly, PC means C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x raised to 4. Okay, now any problem? Clear? Anybody? यस No, सर. sir. ओके, मीन्स क्या समझू मैं? प्रॉब्लम है कि नहीं है? No problem, sir. नहीं. ओके ओके, गुड, थैंक यू. नाउ नेक्स्ट, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? दूसरे एंड क्या करेंगे? दो कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा अगेन बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो तो आर ही है. ओके, तो मैंने 3 पॉइंट लिए P4 में से, तो वो भी मेंशन करूंगा. PA PB PC बिलोंग्स टू P4. ओके, क्लियर? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना स्टूडेंट? No problem, sir. ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करना है, तो आप कर पाएंगे? तो आपको मैं Yes, होमवर्क sir. में दे दूं? नहीं, यहाँ पे देखो क्विकली है ना, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ. यस, दिस इज अवर एग्जाम्पल. ओके, लुक एट हियर एवरीबडी, क्योंकि मैं स्पीड में जा रहा हूँ. ओके, अब P1 प्लस P2, मुझे P1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मैं P1 प्लस P2 फाइंड करूंगा तो क्या होगा? A0 प्लस A1x प्लस A2x पर, ये P1 है मेरा, ये P2 है, दोनों का एडिशन किया. उसके बाद मैंने क्या किया? कांस्टेंट साथ में किया, x वाले साथ में किया, x स्क्वायर वाले साथ में किया, x क्यूब वाले एंड x रेज टू 4 वाले. तो आप देखो, तो ये फॉर्मेट तो वही है ना यहाँ पे, कि पहले कांस्टेंट है, उसके बाद x के आगे कोई कांस्टेंट है, उसके बाद x स्क्वायर के आगे कांस्टेंट है, x क्यूब के आगे कांस्टेंट है, x रेज टू 4 के आगे कांस्टेंट है. तो ये फॉर्म तो P4 का ही हुआ ना? यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर. Okay, that means it is belongs to P4. So its closure is completed. Okay, satisfied here. Now associativity. तो associativity के लिए थोड़ा आपको
वर्क करना पड़ेगा। तो P1 प्लस P2 ब्रैकेट प्लस P3, तो मैंने पहले P1 प्लस P2 फाइंड कर दिया था, आगे ही किया था ना, ऊपर ही, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा, प्लस P3। हमारे में क्या है, भूल मत जाना, व्हाट वी हैव, we have PA PA PB, PB PC. yes, okay, so it is our PA PB PC, okay, so here you can add them again, constant term साथ में, x वाले साथ में, x स्क्वायर वाले साथ में, x क्यूब वाले साथ में, x रेज़ टू 4 वाले, ओके। तो यहाँ पे अब मुझे प्रूव क्या करना था, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दूंगा मैं। तो आई वांट टू प्रूव दैट P1 सेपरेट करना है, दैट मीन्स PA सेपरेट करना है PB प्लस PC, ओके। तो यहाँ पे PA को मैंने अलग कर दिया, PB एंड PC को साथ में एडिशन में लिख दिया, दैट मीन्स एसोसिएटिव होल्ड्स। क्लियर एंड कंफ्यूजन? जल्दी, हाँ फटाफट बोलना। नो सर। ओके, देन अगर आप पोलिनोमियल के बारे में सोचेंगे तो जीरो ऐड करने से कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए हमको उसको जीरो पोलिनोमियल ले लिया, ओके। तो दैट इज अवर आइडेंटिटी, मीन्स A1 प्लस जीरो, A1 प्लस जीरो, A1 प्लस जीरो, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल गया विदाउट चेंज। सो 0 बार प्लस P1 इज इक्वल टू P1, सो 0 बार इज अवर आइडेंटिटी। आप जीरो भी लिख सकते हो, दैट इज नो इश्यू, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा है इनवर्स, ओके। अब इनवर्स में मुझे जीरो वापस लाना है और इसे करना है कि P1 प्लस समथिंग, सॉरी PA प्लस समथिंग इज इक्वल टू जीरो वापस लाना है। तो मैं यहाँ पे किससे एडिट करूंगा उसको, ऑब्वियसली माइनस से, है ना। तो माइनस PA से करूंगा, तो माइनस PA, तो ये पूरा माइनस मैंने ले लिया P4 में से। तो P1x प्लस माइनस, सॉरी PAX प्लस माइनस PAX करूंगा तो मेरा जीरो वापिस आ जाता है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा कि P1 इज एन इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन P4, मीन्स P1 के पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट है, ओके। दैट इज द कंडीशन नंबर 4। नाउ कॉम्यूटेटिव इज वेरी इजी। सो टू शो PA प्लस PB इक्वल टू PB प्लस PA, तो PA प्लस PB फाइंड कर दो, है ना, और उसको PB प्लस PA में ले आओ। क्लियर? थोड़ा आगे पीछे ही करना है, नथिंग एल्स। देखो A0 प्लस B1 था तो B0 प्लस A1 लिखा, दोनों को सेपरेट कर दिया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्लियर? कर पाएंगे स्टूडेंट? Yes sir. ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज वेरी इजी। उसमें आपको क्या दिखाना है, अल्फा PA बिलोंग्स टू, क्या दिखाएंगे, P4, है ना। तो अल्फा इंटू P1 कर दो पूरा, अल्फा हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इंटू A0 प्लस अल्फा इंटू A1 x प्लस अल्फा इंटू A2 x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू A3 x क्यूब प्लस अल्फा इंटू A4 x रेज़ टू 4। अब देखो आप सभी में कोफिशिएंट ही चेंज हुआ, उसका फॉर्म तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इन P4। क्लियर? ओके, तो ये 6th प्रॉपर्टी भी मैंने करवा दिया आपको। अब 7th प्रॉपर्टी में मुझे अल्फा P1 प्लस P2 करना है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो अल्फा सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद दोनों को सेपरेट करना है, डन, ओके, इट इज कंप्लीटेड। उसके बाद मुझे अल्फा प्लस बीटा इंटू P1, अल्फा प्लस बीटा इंटू, हमारे केस में PA PB है, हाँ थोड़ा ध्यान रखना। आप P1 P2 लेंगे तो पर भी कोई इश्यू नहीं है ना, लेकिन आपका डेफिनेशन पहले मेंशन किया हुआ और करेक्ट होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा PA इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा से उसको एडिशन मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद दोनों को सेपरेट करो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने से, और उसके बाद फिर से दोनों को अच्छी तरीके से राइट अप करो, दैट मीन्स अल्फा P1 अल्फा PA प्लस बीटा PA। क्लियर? दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर, ये था 7, 8। नाउ वी गो फॉर द 9। ओके, तो 9 में क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा P1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा से मैंने स्टार्ट किया, अब अल्फा मैंने बाहर रख दिया, बीटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा बीटा P1 हो गया। अब उसमें थोड़ा वेरिएशन करूंगा तो बीटा अल्फा P1 भी हो जाएगा, ओके। तो आप इस तरीके से भी सीधा लिख सकते हो, ओके। तो ऑल 10th प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल। 1 इंटू PA आपको करना है, तो 1 इंटू PA करेंगे तो PA ही मिलेगा, दैट मीन्स all conditions are satisfied, all properties are satisfied, therefore
P4R is a vector space. Am I right or wrong, student? Yes sir, right. Okay, then ओके यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ है, इट इज वेरी वेरी यूजफुल कि आप कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ले लो. पोलिनोमियल, दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन Pn मींस polynomial function with degree n, okay, less or equal to n. That means Pn is the class of all polynomials of degree less than or equal to n. तो with addition and scalar multiplication it is always vector space. आपको अगर P10 दिया है ना, P10 तो पर भी वो वेक्टर स्पेस होगा ही होगा. ओके, दैट मीन्स आप कोई भी पोलिनोमियल लो पावर का, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू थिंक अबाउट द P8, तो वो उसका डिग्री 8 तक जाना चाहिए. अगर वो 8 तक जाता है और वो कंप्लीट है अच्छी तरीके से, देन इट इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस. 100 होगा P100 तो पर भी वो वेक्टर स्पेस होगा, P1000 होगा तो पर भी वेक्टर स्पेस होगा. इट इज इन जनरल स्टेटमेंट. ओके, द Pn इज ऑलवेज एंड a vector space. Okay, clear? Pn is a vector space. Clear? Any confusion? यहां तो हमने P4 के लिए ही किया, आपको सिंपल पूछना है तो P2 के लिए भी पूछ सकते हैं, है ना. सेम प्रोसीजर करना है आपको, सिर्फ वहां पे डिग्री क्या हो जाएगा, स्क्वायर तक जाएगा. क्लियर? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? जल्दी गिव मी योर कंफर्मेशन. No, sir, no doubt. ओके, देन नेक्स्ट जो नहीं है, ऐसा एक एग्जांपल ले रहा है कि वेक्टर स्पेस नहीं है, वो कैसे पता चलेगा. ओके, तो चेक वेदर R प्लस विथ यूजुअल वेक्टर स्पेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स वेक्टर स्पेस और नॉट. आपको चेक करने के लिए बोला गया है. तो ओके, तो चलो चेक करते हैं. पहले मुझे किसको चेक करना है, दैट इज द बिग थिंग, R प्लस को, है ना. R प्लस रियल नंबर के साथ है, फील्ड कौन सा दिया था, वेर इज इट, यस, R प्लस विथ यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, R प्लस R ही है. ओके, तो यहाँ पे R प्लस R वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है. ओके, तो मैं क्लोजर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन R प्लस के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, तो इसे होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, तो अगर मैं दो एलिमेंट इसमें से ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने U लिया एंड V लिया, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ना, R प्लस मीन्स. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे U एंड V बिलोंग्स टू R प्लस ले रहा हूं, तो U प्लस V भी R प्लस में ही आएगा ना. एम आई राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट, इज इट ट्रू कि मैं ये जो सेट है उसमें से दो एलिमेंट लूँ और दोनों का एडिशन करूँ तो वो भी R प्लस में आएगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. ओके, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगा, U प्लस V आप करो प्लस W करो, तो U प्लस V प्लस W आप करेंगे तो पर भी वो R प्लस में ही रहेगा. ओके, और ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं? ये मिलेगा ना? इज इट सेटिस्फाइड? Yes, sir. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा एंड दैट इज अवर आइडेंटिटी. ओके, तो हम एडिशन के साथ आइडेंटिटी लेते हैं, तो U प्लस कौन सा एलिमेंट लूंगा तो मुझे U वापिस मिलेगा एडिशन में. बताओ. जीरो है ना, तो ये जीरो लेना पड़ेगा मुझे, और वो जीरो मेरे सेट में ही नहीं है. लुक एट हियर. क्लियर? ओके, तो ये जीरो इसमें है ही नहीं, दैट मीन्स जीरो नॉट बिलोंग्स टू R प्लस. दैट मीन्स आइडेंटिटी इज नॉट पॉसिबल इन अवर केस R प्लस. तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो है वो कंडीशन ब्रेक हो रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नॉट अ वेक्टर स्पेस. अंडरस्टैंड? Yes, sir. यहां से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. अब आइडेंटिटी ही नहीं मिल रहा है तो मैं व्हाई आई गो फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे तो एक ही प्रॉपर्टी ऐसा मिलना चाहिए कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है, यू कैन सी हियर. क्या ये आगे कैसे बढ़ेगा? यस, ओ
1 मिनट है स्टूडेंट. ओके, सीधा नीचे चला जाता है. ओके, यू कैन सी हियर. ओके, हमने क्या लिखा है सीधा. मुझे पता था कि मेरा एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एक सेंटेंस में वो खत्म कर दिया, 3 सेंटेंस में. वी नो दैट आर प्लस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, देयरफॉर 0 नॉट बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे. ओके, 0 नॉट बिलोंग्स टू, दैट मीन्स 0 नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस. ओके, therefore there does not exist an additive identity. मैंने आपको दिखाया कैसे नहीं हो रहा है. therefore R plus cannot be a vector space. clear student? clear हो गया? ओके, अब ये रिमार्क्स थोड़ा चेंज करना है, इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. डन, ये थोड़ा चेंज करना है ना, तो ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे. एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. तो आपको मैंने एक ही एग्जांपल करवाया कि जो वेक्टर स्पेस नहीं है वो R प्लस. ओके, अब चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टिपिकल हमारे सेट के अलावा. ओके, तो इस तरीके से डिफाइन करके दिया है. देखो R प्लस को ही डिफाइन करके दिया है, लेकिन उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दूसरी तरीके से करके दिया है. डिफाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई and kx is equal to x raised to k, all x belongs to R plus k belongs to R, so that R plus is a vector space. means R plus में आपको एडिशन इस तरीके से करना है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करना है और उसको आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है. ओके, तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करेंगे अगेन. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 एलिमेंट मुझे चाहिए फिर से, तो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट R प्लस में से ले सकता हूँ. तो U V W. ओके, मैम ने एक्स वाई जेड लिया है तो वी ऑल्सो कंसिडर एक्स वाई जेड हियर. तो मैं पहले 3 एलिमेंट ले लूँगा एक्स वाई जेड. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R प्लस. ओके, तो since multiplication of any two positive real numbers is a positive real number for any xy belongs to R plus, तो यहाँ पे देखो मुझे x प्लस वाई करना था. हम क्या करते हैं क्लोजर में x प्लस वाई करते हैं, लेकिन x प्लस वाई यहाँ पे मुझे दूसरी तरीके से डिफाइन करके दिया है. मुझे क्या करना है? x इंटू वाई. तो x प्लस तो x इंटू वाई. ओके, तो अब मैं कोई भी R प्लस के 2 एलिमेंट लूंगा और उसका प्रोडक्ट करूंगा, तो it is also belongs to R plus or not? Yes or no? Are you understand this step, student? Hello. Yes, sir. Okay. Yes. What about others? Yes, good. Soumya understand. Nishita, Parth, Drumil, 508. Are you understand this? sir. Okay. Understood, sir. ओके गुड. ओके, तो फर्स्ट अब क्या है कि एडिशन उन्होंने दूसरी तरीके से दिया है, तो हमको उसी का यूज करना पड़ेगा. स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका यूज करेंगे. ओके, नाउ वी गो फॉर सेकंड कंडीशन. तो मुझे अगेन एक्स वाई जेड मुझे लेना है बिलोंग्स टू आर प्लस. मैंने एक बार ले लिया है तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो सीधा हम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू. ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ ये, लेकिन उससे पहले आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि x प्लस वाई मुझे क्या डिफाइन करके दिया है? x इंटू वाई. एंड अगर मैं कोई स्केलर k था ना, यस, k इंटू एक्स. ओके, k इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे x रेज टू k करना है. तो आई वॉन्ट टू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, तो अब मुझे x प्लस वाई आया, तो जहां पर भी एडिशन आया तो आपको यही फॉलो करना है. तो मेरा x इंटू वाई हो गया. ओके, अगेन प्लस जेड आया है ना, तो अब मैं फिर से प्लस आया तो उसके लिए ये यूज करूंगा, तो मेरा हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड. ओके, अब मुझे जो प्रूव करना था वो क्या था, वो पहले मैं दिमाग में फिट कर दूंगा कि मुझे प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड. तो उल्टा जाऊंगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू जेड हुआ. अब अगेन इसको ओपन करूंगा तो x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा. क्लियर? तो वापिस यहाँ पे पहुंच गए.
Clear? Any doubt, student? No, sir. No? Okay. Then next property कौन सा था हमारा? आइडेंटिटी, है ना? तो आइडेंटिटी कौन होगा? चलो यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि x प्लस वाई करूँ तो x इंटू वाई आएगा मेरा, तो अब मैं y क्या ले सकता हूँ? तो मुझे वापिस x मिलेगा. What should be my y in this case? 1. Yes, 1. Good. तो यहाँ पे आपका x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा. तो मेरा 1 जो है दैट इज माई आइडेंटिटी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस? प्लीज रेज योर हैंड. डू फास्ट. Okay, good. Most of the students understand this. 4 to 5. For example, Yagnesh, Soumya, Parth, Drumil, Paras. Paras, are you don't understand this? Okay. Okay. Then next property is our inverse. Okay. Inverse क्या होगा इसके लिए? इनवर्स के लिए मुझे पहले क्या दिखाना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इनवर्स के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू प्रूव. तो इनवर्स के लिए मुझे क्या करना है? तो मुझे x प्लस फॉर एग्जांपल मैं y ले रहा हूँ तो x इंटू वाई होने से मेरा 1 वापिस आना चाहिए. तो व्हाट शुड बी माई y? 1 upon x. Yes, very very good. That means x plus 1 upon x is equal to x into 1 upon x is equal to 1. So 1 upon x is my inverse. Am I right? Okay. Clear? Okay. Any doubt, student? No, sir. સર Okay. સર x પ્લસ 1 upon x 1 થશે. No, 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 no. It is not always true, but in our case, they have defined in this way. That's why it will be x plus 1 upon x. It is nothing but x into 1 upon x and it gives 1. It is not always true. Here we have special types of operation. Clear? તો સર બે ઇક્વલ કેવી રીતના થાય? x પ્લસ 1 upon x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ઇન્ટુ 1 upon x. हाँ, वो हमने ये ऑपरेशन से किया ना कि मैंने y क्या कंसीडर किया? 1 अपॉन x. तब जाके वो मुझे आइडेंटिटी वापस मिल रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा तभी 1 मिलेगा ना. तो हियर 1 अपॉन एक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी डेफिनेशन से जाए तो x प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू मुझे आइडेंटिटी चाहिए. ओके, और उसको हम e बोलते हैं. ओके, तो मेरा x रेज टू -1 एलिमेंट ये केस के लिए क्या हुआ? 1 अपॉन एक्स हुआ. Got it, Nihit? ઓકે Are you સર. on? Okay. Okay. Then next, what is my next condition? So 1 upon x is additive inverse in R plus. Okay. Now next, fifth one is my. Okay, fifth one is commutative. Okay. तो यहाँ पे देखो x plus y है, वो मुझे x into y करना है. तो अब उसको मैं आगे पीछे लिखूँ तो भी चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट है ना, और ये दोनों ही दोनों रियल नंबर है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं. तो यहाँ पे y प्लस एक्स हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स एंड इट इज r प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर प्लस. ओके, नाउ अब 6 प्रॉपर्टीज मेरा सीधा क्या है? kx बिलोंग्स टू r प्लस. तो kx जो है अगर मैं k इंटू एक्स करता हूं तो मुझे किस तरीके से डिफाइन करके दिया है? x रेस टू k, जो आगे कांस्टेंट है उसको पावर में बढ़ाना है. तो मेरा x रेस टू k हो गया, तो x रेस टू k ऑलवेज बिलोंग्स टू r रेस टू k. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 3 रेस टू 4 करो आप, तो उसका जो भी आंसर आएगा इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r प्लस. यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. Okay, then
उसके बाद वाली प्रॉपर्टी नंबर 7, ये मेरा 6 था. ओके, नाउ दिस इज माय 7 प्रॉपर्टी इज k1 k2 x. मैंने दो कांस्टेंट लेना था तो k1 k2, हमारे में अल्फा बीटा लेते थे, यहाँ पे k1 k2 लिया है तो x रेस टू k1 k2 हुआ. अब x रेस टू k1 k2 के मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू k1 रेस टू k2. ओके, अब x रेस टू k1, अगर x रेस टू k इज इक्वल टू kx होता है तो मैं उल्टा उसको यूज करूँ तो ये k2 हो गया मेरा. क्लियर, k2 इंटू एक्स रेस टू k1. अब यहाँ पे k2 एज इट इज. अब दिस इज माई k1 इंटू एक्स, है ना, ये तो प्रूव हो गया. इज इट ओके? प्रॉपर्टी नंबर 7 स्टूडेंट. Yes, sir. निहित, धैर्य, निशिता, सौम्य, दर्शिल, पार्थ, how many students don't Yes, sir. understand this? How many Understand, students don't? Okay, good. Understand, sir. ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 8. ओके, यहाँ पे तो 7 लिखा है लेकिन वो ये 6 जो था वो भूल गए थे इसलिए 8. ओके, वो सीधा हो जाता है, 6 इसलिए नहीं लिखा उन्होंने. 8 k1 प्लस k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू k1 प्लस k2. तो उसको सेपरेट करें तो x रेस टू k1 इंटू एक्स रेस टू k2 लिख सकता हूँ. लेकिन जो मुझे दिया है उस हिसाब से x रेस टू k1 इज नथिंग बट k1 इंटू एक्स एंड x रेस टू k2 इज नथिंग बट k2 इंटू एक्स. यस और नो? और अगर दोनों के बीच में डॉट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, k1 प्लस k1x प्लस k2x. डन? क्लियर? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, No, sir. sir. Okay, then property No, sir. number 9. Property number 9. Property number 9 is, what is my property number 9? Property number 9 तो इसमें आ ही गया ना. Okay, not. Property number 9 is मेरा कैसा है, k1 इंटू k2. ओके, 7 वाला ही मेरा 9 था. यस, यही 9 था ना. हम क्या करते थे, अल्फा बीटा u इज इक्वल टू अल्फा बीटा u इज इक्वल टू बीटा अल्फा यू. क्लियर? ओके, तो यही था. ओके, और तो बाकी कौन सा रह गया, 1 मिनट. ओके, वी चेक इट. ओके, ये हो गया 9, ये u प्लस, ओके, अल्फा प्लस बीटा वाला हुआ. और फिर से प्रॉब्लम. ओके, हाँ, अल्फा, यस, अल्फा प्लस बीटा वाला हो गया. गुड. उसके बाद ये u प्लस वी वाला नहीं हुआ है, अल्फा इंटू यू प्लस वी, है ना. तो अल्फा इंटू यू प्लस वी वाला नहीं हुआ है. ओके, तो अल्फा यहाँ पे अगर करेंगे आप तो k1 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई. ओके, तो k1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई रेस टू k1. ये होगा कि नहीं, k1 x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू k1. एम आई राइट? नो, पहले तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, सॉरी. तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा k1x प्लस k1y. ओके, तो यहाँ पे k1x है, इट इज़ नथिंग बट x रेस टू k1, और यहाँ पे जो है वो x रेस टू, सॉरी, y रेस टू k1, तो इट इज नथिंग बट k1 x प्लस k1 y. यस, ये तो सीधा ही मिल गया था ना. ओके, क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट in this case? Student? No doubt, sir. Okay, up to here any doubt? What about other student? Think about this property. No, sir. Okay, if you don't get it then I will explain you. Okay, so ये देख लेना आप, अगर नहीं होता है तो I will explain you. For 1 belongs to R plus, x belongs to R plus, then 1 into u is equal to u raised to 1, u belongs to R plus.
सो 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू ऑलवेज, है ना। तो ये तो 1 वाला लास्ट 10 नंबर का तो होगा ही होगा, ये 9 है, ओके, और ये 10। तो 10 प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर स्पेस। एनी कंफ्यूजन in today's session? Sorry I take your 8 to 9 minutes more, but if you have any doubt then please let me inform. Okay, any doubt students? No, sir. No, sir. ओके, अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज वाले वो आपको मैं कल लिखवाऊंगा, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल है और ऊपर भी 3 एग्जाम्पल है, तो 5 एग्जाम्पल है। ऑलरेडी हमने 5 एग्जाम्पल डिस्कस किए, ये 1, ओके, 2, उसके बाद P4 3, उसके बाद नॉट अ वेक्टर स्पेस 4 एंड ये 5, ओके। 5 एग्जाम्पल हमने किए और 5 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और ये कोई भी बुक में मिल जाएंगे, है ना। आप कोई भी वेक्टर स्पेस की बुक लेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे ही होंगे वहाँ पे, क्लियर, ओके। तो 5 एग्जाम्पल मैं आपको कल लिखवाऊंगा, देन वी गो फॉर मीन्स नेक्स्ट क्लास में वी गो फॉर सब स्पेस, ओके, इन नेक्स्ट क्लास। एनी कंफ्यूजन इन टूडेज सेशन? No, No. sir. No, sir. Okay, then